Hello students, in our today's video we are going to study the second property of PPC or the second characteristics. First characteristic we have already studied in the earlier video. What we saw that the why is PPC always sloping downwards. I hope you remember that video. Now see, in that video we didn't see what is the shape of PPC. I told you in my next video I will be explaining you the second property of PPC, and the second property of PPC is what is the shape. Now what is the shape means what is मतलब PPC का shape कौन सा है. So the shape of PPC is concave to the origin. This is our second property or this is our second characteristic of PPC. What it is? PPC is concave to the origin. ठीक है, तो वो PPC इसी शेप में क्यों आता है? आई होप यू रिमेंबर दिस PPC. ठीक है, यू सॉ दिस PPC नो. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई PPC इज ऑलवेज कमिंग इन दिस शेप only. So today's let us see in today's video why PPC is always coming in this shape only. Now see, what is the reason of coming in this shape? First of all, just listen the definition. The shape of PPC is decided by the rate of change. Okay, what it is decided? It is decided by the rate of change in MRT and MOC. I hope you remember MRT and MOC, marginal rate of transformation. In the above diagram, in this diagram, below diagram, in this diagram we are going to see what is the rate of MOC and what is the rate of MRT and why it is continuously increasing. जो MRT है इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी रेट कंटिन्यूसली इंक्रीज क्यों हो रही है एंड वाई दैट्स द रीजन द शेप अवर PPC इज ऑलवेज कॉन्केव टू द ओरिजिन. क्योंकि MRT इज ऑलवेज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, दैट इज द रीजन द शेप ऑफ अवर PPC इज ऑलवेज इट इज concave. So all these things we are going to see in our today's video. So always remember that rate of MRT is continuously increasing. Now why it is increasing? You must be wondering, ma'am ये तो कहाँ increase हो रही है? So why it is increasing, that we will see in this today's video. Take an example. जैसे take this, ये टेबल है. This table is known as schedule. All the time we will be preparing this kind of schedule. So this is a schedule. और यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है. ठीक है, हियर वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ गुड वाई एंड गुड एक्स. एज यूजुअल वी टेक दिस एग्जाम्पल ओनली. इन गुड वाई वी आर टेकिंग प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ एंड गुड एक्स वी आर टेकिंग प्रोडक्शन ऑफ व्हीट. ठीक है, सो हियर वी आर हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स वेयर वी आर प्रोड्यूसिंग गुड वाई एंड good x. I hope you remember this much. In the earlier video we have seen also. Now first of all you have to assume that students we are producing 20 units of cloth. मतलब 20 units of good y we are producing. ये assume करना है हमें. ठीक है, so 20 units of cloth we are producing and only 1 unit of wheat we are producing. ध्यान से सुनो, हम लोग 20 units of cloth produce कर रहे हैं और सिर्फ 1 unit of wheat we are producing. See, we are here at point C. अगर उसको शेड्यूल डायग्राम में देखो, this is the PPC. Assume we are here at point C. I hope you remember this PPC. If we are here at point C, right? Earlier also I told you that हमारे ये जो resources हैं PPC में, तो ये resources तो completely use हो गए हैं. तो अब हमको हमारे जो resources हैं वो क्या करने हैं? जो resources तो पूरे use हो गए, तो अब मुझे अपना production increase करना है wheat का. तो मैं क्या करूंगी? मैं क्लॉथ का प्रोडक्शन व्हाट आई विल डू, आई विल डिक्रीज. आई होप यू रिमेंबर दिस. इन द अर्लियर वीडियोज आई एक्सप्लेन्ड यू नो, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट आई विल रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ. गेटिंग इट स्टूडेंट्स? सो वी हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ. ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा क्लॉथ का प्रोडक्शन कम करने के लिए? मीन्स क्लॉथ में जो रिसोर्सेज हैं, गेटिंग इट, क्लॉथ के रिसोर्सेज निकाल के व्हीट में लगाना होगा. नाउ सी, अब अगर हमें व्हीट का प्रोडक्शन, अब इसको छोड़ो, सीधा शेड्यूल, ये देखो, ये क्लॉथ का प्रोडक्शन है और ये व्हीट का प्रोडक्शन है. नाउ सी, यहाँ पे क्या हम लोगों को देखना है कि वही रिसोर्सेज हमें निकाल के व्हीट में लगा देना है. एक्स के रिसोर्स, वाई के रिसोर्सेज निकाल के हमें व्हीट में लगा देना है. अब अगर हमें क्लॉथ का प्रोडक्शन 20 से 18 करना है, अर्लियर टाइम वी वर डूइंग प्रोडक्शन ऑफ 20 units of cloth y. Now we are going to do the production of 18 units. 20 से अब हम लोग क्या करेंगे? 18 units करेंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? What we are going to do? See, हमें क्या करना होगा?
अगर हमने इसको 20 से 18 कर दिया तो ही हम वीट का प्रोडक्शन 1 से 2 कर सकते हैं। गेटिंग इट? इफ आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई प्रोडक्शन ऑफ वीट फ्रॉम 1 to 2, ध्यान से सुनो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई का जो प्रोडक्शन है जो क्लॉथ का, वो मुझे 20 से क्या करना पड़ेगा, 18 करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो, व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज 2 एंड हियर व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज व्हाट? 1। रिमेंबर दिस। ठीक है, नाउ व्हाई इट इज हैपनिंग, जस्ट सी, बिकॉज जो रिसोर्सेज हमने यहाँ से निकाले, हम यहाँ से रिसोर्सेज निकालेंगे ना, वाई से तो हम रिसोर्सेज निकाले हैं, बिकॉज जो रिसोर्सेज हमने वहाँ से निकाले हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम 20 से इसको 18 करेंगे, इसका मतलब हम कुछ रिसोर्सेज वाई के कम करेंगे। कौन से रिसोर्सेज कम करेंगे? जैसे प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ के लिए हमें एक लैंड की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो लैंड हम कंप्लीटली तो यूज़ नहीं कर सकते वीट के लिए, बट सम पार्ट एटलीस्ट वी कैन यूज़ ना। सो हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि हम इसका 2 यूनिट्स हमने क्लॉथ की कम कर दी, सो दैट हम 1 यूनिट वाई की क्या कर दे रहे हैं, इंक्रीज कर दें। इसका मतलब वाई का प्रोडक्शन हम 1 यूनिट से बढ़ा सकते हैं। राइट, नाउ मूव फर्दर। अब आगे देखो, व्हेन यू मूव फर्दर व्हाट वी हैव टू डू, क्लॉथ का प्रोडक्शन और हमें कम करना है ताकि हम वीट का प्रोडक्शन बढ़ा सके। यहाँ पे हम 18 से क्या कर देंगे, 15। ठीक है, तो हमारा वीट का प्रोडक्शन क्या हो गया, 3 हो गया, मतलब 2 से 3 हो गया, यानी 1 और यूनिट इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो वीट का प्रोडक्शन बढ़ा दिया हमने। नाउ वी हैव यूज द लैंड। अब हमने क्लॉथ के प्रोडक्शन में जो लैंड हो रही थी वो तो हमने यूज कर ली। अब हमारे पास और क्या है रिसोर्सेज वाई के जो हम एक्स में लगा दें। सोचो, एज्यूम करो कि कोई बिजनेसमैन है, उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज हो सकता है। उसके पास लैंड हो सकता है, ठीक है, लैंड मतलब ऑफिस हो सकता है, तो मान लो वो उस ऑफिस को यूज कर लेगा। और उसके पास क्या हो सकता है, मशीनरी हो सकती है। तो जो मशीनरी हम क्लॉथ के प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे थे, नाउ व्हाट वी विल डू, हम इस मशीनरी को सेल करके जो पैसे हमें मिलेंगे उसमें से सेकेंड हैंड चीज़ें हम एक्स के लिए खरीदेंगे। ध्यान से सुनो, क्यों? तभी तो हम वाई का प्रोडक्शन कम कर देंगे और तभी हम एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, उसी रिसोर्सेज में हमें काम करना है। सो वी आर हैविंग लेस रिसोर्सेज, सो वी विल यूज दीज रिसोर्सेज ओनली। ठीक है, सो वी हैव यूज लैंड नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सेल द मशीनरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ के प्रोडक्शन के लिए जो मशीनरी थी, नाउ वी विल सेल द मशीनरी। ठीक है, एंड विद दैट मनी, वॉट एवर मनी वी विल गेट, वी विल बाय सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट। तो यहाँ पे हमने 3 यूनिट, यहाँ हमें 3 यूनिट कम करनी पड़ेगी, 15। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 यूनिट बढ़ा सकते हैं। राइट, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो, इसके बाद भी हमें क्या करना है, इन सबको कंटिन्यूसली डिक्रीज करना है। ठीक है, सो वी नीड टू बाय मेनी थिंग्स। अब देखो, एक्स का प्रोडक्शन करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, बट वी डोंट हैव दैट मच मनी। सो व्हाट वी विल डू, वी विल बाय सेकेंड हैंड मशीनरी और वी विल बाय सेकेंड हैंड गुड्स बाय सेलिंग द गुड्स ऑफ और बाय सेलिंग द रिसोर्सेज ऑफ गुड वाई, सो दैट वी कैन डू द मोर प्रोडक्शन ऑफ वीट। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद क्या होता है, क्लॉथ का प्रोडक्शन तो यहाँ पे मान लो कम हो गया, ठीक है, 6 पे आ गया। ठीक है, और हमें और कम करना है, तो वो जो मार्केट में जैसे मान लो स्मॉल थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द बिजनेस, सो ऑल दो स्मॉल थिंग्स विच आर ऑफ नो यूज ओवर हियर, जो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे क्लॉथ के प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल भी यूज़ की नहीं थी, वी विल सेल दोज थिंग्स एंड विद दैट मनी वी विल बाय सम मोर न्यू थिंग्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट। गेटिंग इट चिल्ड्रन? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? क्लॉथ के प्रोडक्शन को कम हो गया है और हमको इसको और कम करना है, तो हम क्या करेंगे, सारी छोटी मोटी एकदम बेकार चीज़ें जो नहीं होती है, वी विल सेल, ओके, एंड सेकेंड हैंड वी विल बाय न्यू थिंग्स विद दैट मनी। गेटिंग इट? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट। तो ज़्यादा सामान हमें बेचना पड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, दैट डजंट मैटर। तो मुझे 5 यूनिट यहाँ पे सेल करनी पड़ रही है, 5 यूनिट कम करनी पड़ रही है, सामान को बेच के मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, आई एम गोइंग टू वी विल डू द प्रोडक्शन ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ लेस ऑफ क्लॉथ। वाई? सो दैट वी कैन मेक 1 मोर यूनिट ऑफ वीट। देखो वीट का प्रोडक्शन खाली 1 से इंक्रीज हो रहा है और क्लॉथ का प्रोडक्शन 2, 3 सबसे डिक्रीज हो रहा है। वाई? क्योंकि हमें क्लॉथ का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम करना है, सो दैट वी कैन मेक मोर प्रोडक्शन ऑफ वीट। इज दैट क्लियर अप टू ऑल ऑफ यू? So we can make more production of wheat. So here you have to remember one thing. What we have to remember students, कि जो earlier video में मैंने बताया था, what is MRT? MRT और MOC, what was the formula? It is equal to what? Change in commodity X upon change in
गुड एक्स, सॉरी, चेंज इन कमोडिटी गुड वाई अपॉन चेंज इन गुड एक्स, मतलब एक्स की गुड्स में कितना चेंज आया अपॉन, सॉरी, वाई के गुड में कितना चेंज आया अपॉन एक्स के गुड में, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग ये देखेंगे, लेट अस सी व्हाट इज द चेंज। दिस कॉलम इज व्हाट, चेंज इन वाई, दिस इज वाई। ना इन दोनों में कितना चेंज आया, फर्स्ट कोई चेंज नहीं आया तो उसको ब्लैंक छोड़ दो। 20 माइनस 18 कितना हो गया, 2। 18 माइनस 15 हाउ मच इट इज, 3। सो हियर व्हाट इज द डिफरेंस, 4। व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन टू, 5. So change in y is this much, 2, 3, 4, 5. Now what is change in x? Good x में कितने quantities में change हुआ है, फर्स्ट वन leave it as it is. यहाँ पे दोनों में कितना difference है, 1. Here also what is the difference, 1. Again here what is the difference, 1. So all the time there is a difference of 1 unit in change in production of good x and in production of y. What, how much we are reducing, 2 units, 3 units, 4 units and 5 units. मतलब this much units of y we are reducing to manufacture this much units of x. Now what is this MRT? Just now I showed you MRT का formula क्या था, delta y upon delta x. Now here just simply इन दोनों को upon करो, 2 upon 1 will be what, 2:1. 3 upon 1 will be 3:1. 4 upon 1 will be 4:1. And 5 upon 1 will be how much, 5:1. So this is our MRT, right? All of you understood what is how to calculate MRT? See the formula, see the table, just simply write down the values. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, here we are saying that our MRT is continuously increasing, 2, 3, 4, 5, ये increase हो रहा है कि नहीं, और ये MRT है, so we can say that our MRT is continuously increasing. So just because MRT is continuously increasing, our PPC is concave. See, so this is the shape. Always remember the shape of PPC is concave. So because our MRT is increasing, our PPC is concave to the origin. Right? Everyone understood till here? Now see, whenever it is asked to you, why is PPC concave? You should, without any much thinking, you should know because our MRT, see, because our MRT is continuously increasing, don't get confused children over here. यहाँ पे MRT increase हो रहा है continuously, इसीलिए PPC का shape क्या है, what is the shape, it is concave. So you should know because our MRT is increasing, our first property of PPC we saw that PPC is always sloping downwards. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, our PPC is always sloping downwards. वाई, बिकॉज वो डाउनवर्ड क्यों थी, व्हाट वाज द रीज़न, वहाँ पे क्या रीज़न था, क्योंकि हमने एक चीज़ का प्रोडक्शन कम करके दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया. ठीक है, अब नेक्स्ट ये है, ये कॉन्केव. अब कॉन्केव क्यों होता है, ये जो रेट जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, ये जो MRT की रेट है ये कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. Now because this rate is continuously increasing, that's why you can say that our PPC is concave to its origin. Why it is concave? Because just because of increasing rate of MRT. Always remember this point, son children. ध्यान से देखो वीडियो, नहीं समझ में आ रहा है, pause it and then you listen to my words what I am saying. Why is PPC concave to its origin? Because of increasing rate of MRT. यहाँ तक समझ में आ गया? No doubt I think. अगर डाउट हो तो प्लीज़ कॉल कर लेना, इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप यू पीपल कॉल. समटाइम्स व्हाट हैपन, यू पीपल आर सेंडिंग द मैसेज एंड इट इज़ नॉट क्लियर, सो यू कैन कॉल मी एनी टाइम. नाउ सी, नेक्स्ट वन मोर स्मॉल थिंग वी हैव टू सी. अगर हमने पीपीसी का स्लोप देख लिया, इट इज़ डाउनवर्ड, ये भी देख लिया कि पीपीसी का शेप क्या है, कॉन्केव. इन केस अगर वो कॉन्केव नहीं है, तुम लोग ये सोचोगे कि मैम इफ़ द शेप इज़ नॉट कॉन्केव, तो क्या हो सकता है, इन केस हमारा MRT जो है वो कांस्टेंट भी हो सकता है. ठीक है, ये देखो, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, अवर MRT मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या हो सकता है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, या फिर वो कम, कांस्टेंट का साइन ये है और कम की साइन ये है, लेस की. या तो MRT कांस्टेंट हो सकता है या फिर MRT क्या हो जाएगा, लेस हो सकता है. ये दो केसेस भी होते हैं. हाउ दिस केसेस आर देयर, जस्ट सी, वेरी शॉर्ट इट इज. देखो, अगर MRT कांस्टेंट रहता है या कम हो जाता है, तो वी हैव स्टडीड दैट MRT कैसे डिसाइड, MRT ही डिसाइड करता है कि PPC का शेप कैसा होगा, ये तो हमने पढ़ लिया. तो ये जो हमारा X एक्सिस है और ये जो हमारी Y एक्सिस है, यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है. गेटिंग इट? क्या अगर MRT कांस्टेंट है, देखो अगर MRT कांस्टेंट है तो PPC क्या होगा,
पीपीसी एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ पे, ठीक है। और ये जो एमआरटी हैं ये क्या है, ये भी हमारे क्या हैं, ये भी हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। सो आवर एमआरटी इज कांस्टेंट, ओके। सो देन आवर शेप ऑफ पीपीसी विल बी स्ट्रेट लाइन, रिमेंबर दिस। तो ये हो गया एमआरटी का, इंक्रीजिंग का देख लिया, कांस्टेंट का देख लिया। अब लास्ट, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस लास्ट थिंग वी विल सी नाउ, लेट अस सी कि अगर एमआरटी कम हो गया है, देखो कम हो गया मतलब डिक्रीज हो गया है, इफ अवर एमआरटी इज डिक्रीजिंग तो व्हाट इज द शेप ऑफ पीपीसी, दिस इज द शेप, ठीक है। अगर हमारा एमआरटी कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो शेप ऑफ पीपीसी विल बी लाइक दिस, इट इज नोन एज कॉन्वेक्स। व्हाट द शेप इज नोन एज convex towards origin. Getting it, children? MRT is decreasing, then the shape of PPC will be convex towards origin. Clear, everyone? The shape of PPC. Now once again I am giving you a quick review. The shape of PPC is always decided by the rate of MRT. Note it down somewhere. If it is increasing, ठीक है, if MRT is increasing, तो shape of PPC क्या होगा? Concave. Write it down if you are forgetting. If MRT is constant, then what will be the shape of PPC? It will be a straight line. And last, if MRT is decreasing, then it is convex towards origin. Getting it? I hope this much part is clear to you. If any doubts, you can connect to me anytime. PPC के सारे shapes, why it is sloping downwards, why it is concave, PPC is concave to the origin. Once again I am telling, the shape of PPC is decided by the rate of change in MRT. So in all this below diagrams you have seen what is the shape of PPC and what is the rate of MRT, whether it is increasing, decreasing or it is constant. Thank you for watching.